Good morning, student. Today we are going to learn subject maths, standard 8, chapter number 15, introduction to graphs. We have already know how to draw graph in earlier classes. Here we have to discuss details about graphs, how to draw graphs. In these chapters, what we have to learn, I will discuss it. In this chapter, we have to learn about bar graph, pie graph, histogram, linear graph, position of points, and coordinates. Now let's we start from that. First point, a graph is a picture which shows the relationship between two quantities. A graph is a picture which shows the relationship between two quantities. Second point, a bar graph is used to show comparison among categories. Third point, birth rate, death rate, rain, production of crop, result of cricket and football matches, etc. are represented by bar graph in newspapers, magazines and on television. It is easier to understand, compare and remember information given by bar graph. Next, a pie graph is used to compare parts of whole. है ना? A pie graph is used to compare parts of whole. A histogram is a bar graph which shows data in interval. A histogram is a bar graph which shows data in intervals. A line graph displays data that changes continuously over period of time. The relation between dependent variable and independent variable is shown through graph. The relation between dependent variable and independent variable is shown through graph. Now, so we start exercise 15.1. See, your question is there. You have to understand this, how to draw this graph. See here, the following graph shows the temperature of patient in a hospital recorded every hour. ना यहाँ टेम्परेचर, पेशेंट का टेम्परेचर दिया है, एवरी आवर में कितना टेम्परेचर होता है, चेंजेस होता है, उसके बारे में यहाँ ग्राफ दिया है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ 2 एक्सिस दिया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो यहाँ पर स्केल भी दिया है. ऑन द वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. और यहाँ पर लिखा है, देखो टेम्परेचर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है टाइम लिखा है. देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया है, 0, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ओके, तो यहाँ पर टाइम दिया है 9 AM, 10, 11, 12 नून, 1 PM, 2 PM एंड 3 PM. यहाँ पर टाइम दिया है. तो यहाँ पर उसका क्वेश्चन दिया है, देखो व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. तो 1 PM पर कितना उसका टेम्परेचर था, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है. देखो 36 एंड 37 के बीच में है, यानी कि क्या होगा, द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM वॉज 36.5 डिग्री सेल्सियस. चलो सेकंड बी में क्या है, व्हेन वॉज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ 38.5 डिग्री टेम्परेचर कब था, तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर टाइम दिया है, द पेशेंट्स टेम्परेचर एट नून 12 o'clock. ओके, देखो द पेशेंट टेम्परेचर वॉज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 noon. ओके, थर्ड क्वेश्चन सी नंबर, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन. व्हाट वर दिस 2 times, है ना, 2 टाइम, कौन से 2 टाइम पर सेम टेम्परेचर था. तो पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM एंड
2 PM, 1 PM एंड 2 PM पर। ओके, चलो डी क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। द पेशेंट temperature at 1:30 PM was 36.5 degree Celsius. Okay, the temperature did not change during interval of 1 PM and 2 PM, so we can say that the temperature did not show any changes and it was 36.5 degrees Celsius at 1:30 PM. The next question E, during which period did the patient temperature show on upward trend? The patient temperature showed an upward trend during the period 9 AM to 10 AM, 10 AM to 11 AM and 2 PM to 3 PM because the temperature increased during this interval. No, that's why you can say because in this period temperature increased. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहाँ पर सेल के बारे में दिया है मैन्युफैक्चरिंग, देखो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है कितना, देखो यहाँ पर स्केल भी दिया है। ऑन द वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹2 करोड़ शेयर, कितने करोड़ का, 2 करोड़ का शेयर हुआ। 1 सेंटीमीटर का समझना है 2 करोड़, और वहाँ एक्स एक्स में क्या दिया है, ईयर दिया है 2002, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। तो यहाँ पर दिया है सेल्स इन रुपीज़। ओके, करोड़, तो यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, तो व्हाट वर द सेल्स इन 2002, 2002 में कितना सेल हुआ था। तो 2002 में 4 करोड़, कितने करोड़ का, 4 करोड़ का। और दूसरा क्वेश्चन 2006 में कितना हुआ था, 2006 में 8 करोड़, कितने करोड़, 8 करोड़ का। ओके, इन द सेम वे अदर्स यू कैन डू योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, सेम क्वेश्चन इज देयर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन botany 2 different plants, plant A and plant B, were grown under similar laboratory condition. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. देखो यहाँ पर ग्राफ दिया है, यहाँ 2 प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। So here question also given to you. First question is how height was plant A after 2 weeks. 2 week के बाद कितना होता है उसकी हाइट। So the plant A was 7 centimeter height after 2 week. दूसरा क्वेश्चन कितना है, 3 week के बाद कितना होता है। The plant A was 9 centimeter height after 3 week. बी क्वेश्चन बी में क्या है, हाउ हाई वॉज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक। अब प्लांट बी है कितना होता है 2 वीक के बाद, तो प्लांट बी वॉज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 वीक, वाइल आफ्टर 3 वीक हाउ मच, द प्लांट बी वॉज 10 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 3 वीक। सो 1 सेंटीमीटर हाई, ओके, मोर देन प्लांट ए। How much did plant A grow during the 3rd week? Plant A grew during 3rd week is equal to 9 centimeter minus 7 centimeter, तो कितना होगा 2 सेंटीमीटर। डी नंबर में क्वेश्चन क्या है, How much did plant B grow from the end of the 2nd week to the end of the 3rd week? So the plant B grew 10 centimeter minus 7, so 3 centimeter from the end of the 2nd week to the end of the 3rd week. क्वेश्चन नंबर ई, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। तो ए प्लांट ए का पहले फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वीक में क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक 2 सेंटीमीटर टू माइनस 0 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग सेकंड वीक 7 माइनस 2 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। थर्ड वीक में 9 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर, तो 2 वीक। सो दस ड्यूरिंग द सेकंड वीक द प्लांट ग्रू द मोस्ट, है ना, सेकंड वीक में ज़्यादा ग्रो होता है। एफ नंबर
ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लिस्ट, लिस्ट यानी कि कम। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट बी का ग्रोथ कैसा होता है, तो फर्स्ट वीक में क्या होता है 1 माइनस 0 तो 1 सेंटीमीटर, सेकंड वीक में 7 माइनस 1 तो 6 सेंटीमीटर, थर्ड वीक में क्या होता है 10 में से 7 माइनस करो तो 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी वैसा है, प्लांट बी ग्रो द लिस्ट इन द फर्स्ट वीक में लिस्ट ग्रो होता है। ओके। G number, were the two plants of the same height during any week shown here? Specify. At the end of the second week, both the plants were of the same height, that is 7 centimeter. Okay. So question number 4 में क्या है? The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of week. यहाँ पर वीक दिया है, सॉरी डेज दिया है एंड टेम्परेचर दिया है, मंडे टू संडे तक इसके नेम दिया है। और यहाँ स्केल वाई एक्सिस पर क्या दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके। एंड एक्स एक्सिस पर दिया है डेज दिया है। ओके। उसका भी क्वेश्चन है यहाँ पर, on which day was the forecast temperature the same as the actual temperature? The forecast temperature was the same as the actual temperature on Tuesday, Friday and Sunday. What was the maximum forecast temperature during the week? The maximum forecast temperature during the week was 35 degree Celsius. Okay. So others question you do yourself, C and D yourself. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ, वो ग्राफ ड्रॉ करना है। यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ डेज हिल साइड सिटी रिसीव स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। यहाँ ईयर दिया है, यहाँ डे दिया है 2003, 2004, 2005 एंड 2006। यहाँ डेज है 8, 10, 5 एंड 12। तो लीनियर ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? लीनियर ग्राफ टू ड्रॉ टू शो स्नोफॉल इन डिफरेंट ईयर्स। लीनियर ग्राफ में आपको ऐसा ड्रॉ करना है। ओके। तो फर्स्ट में दिया है यहाँ पर 2003 में 8 और 2004 में है 10, तो यहाँ ऐसे लाइन कर डॉट करना पहले। देन 2005 में है 5, तो यहाँ 5 और 2008 में है 12, तो यहाँ पर 12 पॉइंट डॉट करना। बाद में ऐसे आपको स्केल से ड्रॉ कर देना है। आया समझ में? यस। ओके। चलो बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? क्वेश्चन नंबर बी में है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। यहाँ अलग अलग ईयर दिया है और पॉपुलेशन नंबर ऑफ मैन का कैसा होता है और नंबर ऑफ वुमेन का कैसा होता है वो दिया है। तो ईयर दिया है 2003 में नंबर ऑफ मैन है 12 और नंबर ऑफ वुमेन 11.3। 2004 में 12.5, 11.9। 2005 में 13 एंड 13। 2006 में 13.2, 13.6। 2007 में 13.5, 12.8। Now how we can find out solution? So first you have to draw x-axis and y-axis. Okay. तो आपको ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। देखो यहाँ पर ईयर लिखना है, यहाँ पर पॉपुलेशन इन थाउजेंड लिखना है। ओके। तो वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 पॉपुलेशन वुमेन एंड मैन का फाइंड आउट करना है। ऐसे आपको ये ड्रॉ करना है ग्राफ। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अ कुरियर साइकिल फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग suburban area to deliver a parcel to merchant. His distance from the town at different times is shown by the following graph. यहाँ ग्राफ में दिया है टाइम। देखो ऑन द वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम दिया है 8 AM, 9, 10, 11 एंड 12। ओके। टाइम दिया है, यहाँ पर दिया है डिस्टेंस दिया है।
तो क्वेश्चन इज देयर, देखो 8 AM में कितना होता है, 8 AM में होता है ईस्टर्न, 8 AM से स्टार्ट किया है तो 9 AM में होता है 10 किलोमीटर, 10 में होता है 16, 10 एंड 11 के बीच में है 16 किलोमीटर, एंड 11 एंड 12 के बीच में है 22 किलोमीटर. So what is the scale taken for the time axis? तो x axis क्या लिया है, x axis, the time is taken along x axis, the scale along x axis 4 units as a 1 hour है ना, 4 unit as a 1 hour. How much time did the person take for the travel? The total travel time taken by the courier. तो 8 AM to 11:30 AM, तो 3 hour and 1 3 hour and half hours, okay, 1/2 hours. So how far is the place of merchant from the town? Distance of the merchant from the town is 22 kilometer. D number. Did the person stop on his way? Explain. Yes, the stoppage time 10 AM to 10:30 AM. This is indicated by the horizontal part of the graph. E number में क्या है? During which period did he ride fastest? वे फास्टेस्ट राइड किया उसने. ही रोड फास्टेस्ट बिटवीन 8 AM एंड 9 AM. सेवन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7. कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज? जस्टिफाई और आंसर. देखो टाइम टेम्परेचर, देखो फर्स्ट वन ऐसा ड्रॉ करना है आपको. टेम्परेचर, टाइम, ओके. तो in case of third number, the graph shows different number of temperature at the same time, which is not possible. So case 3 does not represent a time temperature graph, है ना. केस 3 है वो टाइम टेम्परेचर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. ओके, आई होप दैट you can understood this full exercise through this video. Okay, so you have to draw graph in your graph book. Thank you.